Good evening, everyone. A very warm welcome to all of you to this special webinar in celebration of World Youth Skills Day. Today, we gather to recognize not only the value of technical and professional skills, but also the equally vital, or maybe more vital, inner skills. The ones that shape how we understand ourselves, relate to others, and navigate the ups and downs of life. In a world that is constantly changing, emotional literacy is no longer a soft skill, it's a survival skill. It's the ability to understand our feelings, where they come from, express them with honesty, and respond to others with empathy. Whether in our personal lives, schools, workplaces, or communities, emotional awareness and regulation can transform how we live and lead our lives. Our youth today face immense pressure from academic performance, peer relationships, digital distractions, and the uncertainty of the future. But imagine a generation that is not only intellectually skilled but emotionally aware, a generation that can pause, reflect, and respond instead of just reacting. That is the vision we are working towards. This webinar is a space for reflection, learning, and dialogue. We'll explore how we can begin to understand the language of our emotions, why it's essential to holistic well being and success, and how even small shifts in self awareness can lead to a deeper connection and resilience. Thank you for joining us on this meaningful journey. Let's open our hearts, stay curious, and remember healing, change, and growth all begin with awareness. And awareness begins with emotional literacy. We're so glad to have you with us today. Let me introduce you to our speakers. I'm Surbhi Khurana. I'm a psychologist at Sritara School of Wellbeing, and I'll be your host today. Joining us today is Mrs. Shanti Pava, a relationship and emotional health coach. She founded Shritara in 2019. She's a retired associate professor from Delhi University. She will be answering your questions at the end of this session. Also with us is Mrs. Sumita Setia, Shritara's most experienced counselor, who will be telling us about emotional literacy. Over to Sumita Setia. थैंक यू सुरभि। नमस्कार सभी को। जैसा कि सुरभि ने कहा कि आज हम यहाँ इंटरनेशनल यूथ स्किल डे सेलिब्रेट करने के लिए साथ में हैं। टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स की बात तो सब जगह हो ही रही है। आज हम बात करेंगे इनर स्किल्स की, जो हमेशा से इम्पोर्टेंट थी, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व के बदलते सिनेरियो में खुद को इमोशनली लिटरेट करना हम सभी की बेसिक नीड बन चुकी है। देखिए, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हम ह्यूमंस में और सभी जीव जंतुओं में नेचर की तरफ से है ही, पर आपस में जुड़ाव रखना सिर्फ हम ह्यूमंस की जरूरत है। जुड़ाव रखने की जरूरत बाकी जीव जंतुओं या एनिमल्स में नहीं है। इसीलिए एरिस्टोटल ने मनुष्य को एक सोशल एनिमल कहा है। सोशल इसलिए क्योंकि परिवार में, समाज में एक दूसरे से हम सब व्यवहार से ही जुड़ते हैं, क्योंकि जुड़ाव रखना हम सबकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या हो वर्क प्लेस, तुम्हारा व्यवहार बहुत मैटर करता है। आपस में रिश्तों का जुड़ना या टूटना सब व्यवहार पर ही निर्भर है, और इन रिश्तों का जुड़ना या टूटना हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है। इसीलिए इमोशनल लिटरेसी या कहीं रिलेशनशिप एजुकेशन को भी स्कूल्स के करिकुलम में इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी है। आज यहाँ पर काफी संख्या में एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, इसलिए मैं बात स्कूलों से ही शुरू करती हूँ। मेरा मानना है कि पेरेंट्स को भी हम एजुकेटर्स की कैटेगरी में ही रखें, क्योंकि बच्चों को हम कुछ भी सिखाना चाहते हैं, किसी भी मामले में एजुकेट करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स भी एक मायने में एजुकेटर्स ही हैं, और लगभग सभी एजुकेटर्स भी पेरेंट्स हैं ही या वुड बी पेरेंट्स हैं। हाँ, तो बात हो रही थी स्कूल्स की। देखिए, स्कूल्स में जो हम पढ़ाते हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है बच्चों को व्यवहार का ढंग सिखाना। स्कूलों में हमारा ज्यादा ध्यान पढ़ाई लिखाई और आईक्यू की तरफ है,
पर ईक्यू और एसक्यू जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लेमैन की भाषा में कहें तो कहा जा सकता है कि स्कूल्स में हम व्यवहार नहीं सिखा पा रहे। हम इसके रीजंस की बात यहाँ नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जीवन के हर फील्ड में व्यवहार बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए, शिक्षा प्राप्त करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोजगार प्राप्त करना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। वो चाहे नौकरी करके हो या फिर अपना ही कोई काम हो। कोई शख्स अगर जॉब करता है तो उसके व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी जॉब में बने रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। और किसी ने अगर बिजनेस करना चूज किया है तो उसके लिए भी उसे टीम बिल्ड करने की जरूरत होती है। और टीम बिल्डिंग में हमारे व्यवहार का बहुत बड़ा रोल होता ही है। कुछ दिन पहले मैंने एक सर्वे की रिपोर्ट देखी थी कि जिन लोगों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है उनका एसक्यू लेवल बहुत हाई रहा, तभी वो सक्सेसफुल रहे। अब एसक्यू को एक दिन में तो डेवलप नहीं किया जा सकता। इसके लिए शुरुआत होगी इमोशनल लिटरेसी से, रिलेशनशिप एजुकेशन से। जब बच्चों को इमोशनली लिटरेट कर दिया जाएगा तो वो खुद ही इमोशनली और सोशली इंटेलिजेंस के रीजनेबल गुड लेवल को अटेन कर लेंगे और अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि स्कूलों में ही पढ़ाई के साथ साथ व्यवहार की शिक्षा को भी इंक्लूड किया जाए। अब बात करते हैं कि सही या अच्छा व्यवहार है क्या। क्या कोई ऑथेंटिक या सर्टिफाइड व्यवहार का तरीका है जिसके लिए कोई सूत्र या सिद्धांत बताए जा सके। देखिए, जीवन ना तो साइंस है ना ही मैथमेटिक्स जिसके फॉर्मूलाज या प्रिंसिपल्स हों। यहाँ दो बातें समझने वाली हैं। पहली, जीवन गतिशील है, हर दिन कुछ नया घटता है। दूसरी बात, जीवन जीवंत है, लाइवली है। हमारी सेंसिटिविटी, हमारी इमोशंस हमारे जीवन को हर क्षण हर पल प्रभावित करती हैं। हम भावनाओं के साथ जीते हैं। वी आर इमोशनल क्रीचर्स। कोई भी इंसान कैसा व्यवहार करता है वो प्रतिबिंब होता है या रिफ्लेक्शन होता है इस बात का कि उसके अंदर क्या चल रहा है। मतलब वो क्या फील कर रहा है, कौन सा इमोशन उस पर भारी पड़ रहा है। और इमोशन भारी पड़ता है इसलिए क्योंकि हम अपने इन इमोशंस को खुद ही समझ नहीं पाते, प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसीलिए हमें उन्हें रेगुलेट करना नहीं आता। और जब हम इन्हें रेगुलेट नहीं कर पाते तो होता क्या है, इन इमोशंस की वजह से जो संघर्ष होते हैं, चुनौतियां आती हैं, उन्हें हम डील ही नहीं कर पाते। यहां तक कि रोजमर्रा की समस्याओं को भी हैंडल नहीं कर पाते हम, और इमोशनली हाईजैक्ट रहते हैं, एक अलग तरह के प्रेशर में रहते हैं। और इस प्रेशर का कारण है कि हमने ये तो सीख लिया कि प्यार को, रेस्पेक्ट को, केयर को कैसे पाना है और कैसे देना है, करियर कैसे बनाना है, दूसरों को खुश कैसे करना है। पर हम नहीं सीख पाए कि कैसे हम खुद खुश रहें, खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट कैसे करें। हर लड़ाई को जीतना तो हमें सिखाया गया, पर हारने पर कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करना है ये हम नहीं सीख पाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि खुद को खुश खुश रखने का ये मतलब कतई नहीं है कि हमें दूसरों को नाराज करना है या अपने अलावा किसी की परवाह ही नहीं करनी। इमोशनली इंटेलिजेंट वही है जिसमें ये काबिलियत हो कि वो अपनी भावनाओं और अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझकर उन्हें मैनेज कर सके। इसके लिए ये बात हमें समझनी होगी कि खुद को खुश रखना सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर के लिए जरूरी है ये सीखना। इस विषय पर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वेबिनार में, जो कि 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर है। तो हम बात कर रहे थे इमोशंस की। देखिए, वैसे तो सारे इमोशंस नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं और एक लिमिट तक जरूरी भी हैं, पर इनका सही इस्तेमाल हम कर सकें और इसके लिए हमें इन इमोशंस को रेगुलेट करना भी सीखना होगा। क्योंकि अनरेगुलेटेड इमोशंस ही हमारे लिए मुसीबत बनते हैं, वो चाहे एंगर हो या डर हो या हो चिंता। जैसे कि एंगर इज वेरी मच नॉर्मल, पर कितना गुस्सा करना है, कहाँ रुकना है, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे ब्रेन में एक करेक्टिव करेक्टिव मैकेनिज्म की जरूरत होती है जो तुम्हें एक लिमिट तक गुस्सा करके तुम्हें काम डाउन कर सके, ताकि तुम रैशनल वे में सोच सको। देखो, अगर ये एंगर तुम्हारे अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह नहीं है, गुस्से को तुम प्रोटेक्टिव टूल की तरह यूज नहीं कर पाते, तब वो बस तुम्हारे लिए एक वेपन हो जाता है। तब तुम अपने इस प्रिमिटिव इमोशन के गुलाम होते हो, और किसी भी तरह की गुलामी लाइफ की क्वालिटी को
डिग्रेड करती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम्हारे अंदर में वो सब है जिससे कि तुम अच्छा सा जीवन जी सको, क्वालिटी लाइफ का मजा ले सको। लेकिन बस कुछ कारणों से, कुछ अपने ही जीवन के अनुभवों की वजह से तुमने इस काबिलियत को खो दिया है। यहाँ श्रीतारा में हम इसी काबिलियत की बात कर रहे हैं, क्वालिटी लाइफ की बात कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इस काबिलियत को भले ही हमने खो दिया है, पर वापस इसे सीखा जा सकता है, बशर्ते कि तुम सीखना चाहो। क्योंकि सिखाया किसी को जा नहीं सकता, पर सीख सभी सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सभी को टैक्स तो पे करना होता है, लेकिन किसी को सिखाया तो नहीं जाता कि कैसे टैक्स को हैंडल करना है। पर क्योंकि देना सभी को होता है, तो वो किसी ना किसी तरह से सीख ही लेते हैं। कभी गवर्नमेंट बीच में आती है, किसी गलती पर पनिश करती है, तुम किसी से पूछते हो, सीखते हो, आखिर तुम सीख ही जाते हो, क्योंकि तुम इस डायरेक्शन में एफर्ट्स करते हो। ऐसे ही अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी लाइफ जीने के लिए, आपको सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने होंगे। ये सीखना होगा कि कैसे हमें इन इमोशंस को यूज करना है, कैसे उन्हें रेगुलेट करना है, ताकि ये हम अपनी जीवन की, ताकि इससे हम अपनी जो जीवन है उसको बेहतरी की ओर ले जाए। जब हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, तो एक इमोशनल फटीग महसूस करते हैं, और इस थकान को मिटाने के लिए हम ऐसे अपने को ढूंढते हैं जिसके कंधे पर सर रखकर हम रो सकें, अपने मन की उदासी किसी को तो दिखा सकें। ऐसा दोस्त, ऐसा रिश्तेदार ढूंढते हैं जिन पर हम भावनात्मक रूप से निर्भर हों। मैं कहती हूँ निर्भरता गुलामी है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा भी है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। मतलब जो व्यक्ति किसी भी मामले में दूसरे के अधीन है, वो सपने में भी आनंद नहीं पा सकता। जीवन को भरपूर जीने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हों। और ये इमोशनली इंडिपेंडेंट होना एक दिन में संभव नहीं है। हमें इन सभी इमोशंस को हैंडल करना स्कूल लेवल पर ही सीख लेना जरूरी हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि अनरेगुलेटेड इमोशंस एक इंडिविजुअल के लिए मुसीबत बनते हैं, और समाज इन इंडिविजुअल्स को मिलाकर, और समाज से मिलकर ही तो विश्व बनता है। अपनी बात को यहीं समाप्त करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमें एक बेहतर जीवन, बेहतर समाज, बेहतर विश्व की दिशा में बढ़ना है, तो एजुकेटर्स को, यानी पेरेंट्स को और टीचर्स को ही करनी होगी इसकी शुरुआत। थैंक यू सो मच मेरी बात को सुनने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। पहला प्रश्न पूछेंगी शिखा शर्मा। टीचिंग इनका प्रोफेशन है। पिछले 15 सालों से बच्चों को ये साइंस पढ़ा रही हैं। ओवर टू शिखा। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिखा मेरा नाम शिखा शर्मा है। आई एम अ साइंस टीचर। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हमें इमोशनली लिटरेट होना, पर ये वर्ड हमारे सामने बहुत बार आया, मेरे सामने बहुत बार आया कि इमोशनली लिटरेसी। लेकिन अभी भी मैं इस शब्द के बारे में क्लियर हूं नहीं कि इमोशनली लिटरेसी है क्या चीज। हाँ शिखा जी, मैं जवाब देती हूँ आपके प्रश्न का। थैंक यू। देखिए शिखा जी, जैसे कि लिटरेसी का हिंदी मीनिंग होता है साक्षरता या अक्षर ज्ञान। तुम्हें हिंदी के अक्षरों का ज्ञान होता है या किसी भी लैंग्वेज के सारे अक्षरों का ज्ञान होता है, उसके बाद तुम उन अक्षरों को यूज करके ही भाषा को बोल पाते हो, समझते हो। ऐसे ही सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये इमोशंस होते क्या हैं। वो पहले भी तुम्हें पता ही है, जैसे दुख, डर, गुस्सा, खुशी, उदासी, घृणा, प्यार, कृतज्ञता, करुणा वगैरह। ये सब इमोशंस ही तो हैं, और हम सभी के अंदर ये सारे इमोशंस होते हैं। चलिए इस बात को एक सीन क्रिएट करके समझते हैं। अभी तुम अपनी बालकनी में खड़े हो और तुम्हारे देखते देखते तुम्हारे सामने वाले घर में बालकनी से कोई गिरा, तो एकदम से शॉक के इमोशन सरफेस पर आ गए। उसके लिए बहुत पेन फील हुआ, क्योंकि तुम्हारे सामने सामने वो सड़क पर तड़प रहा है। उसके घर के लोग आ गए, रोने लगे, तो तुम्हारे अंदर हेल्प करने के इमोशंस आ गए। तुम उन इमोशंस की वजह से सोचते हो कि एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। तुम्हारे अंदर उस बंदे को बचाने के इमोशंस आ गए। ऐसे ही हर इंसान में सब सबके सब इमोशंस होते ही हैं। हाँ,
जब कोई बात हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो ये इमोशंस निकलकर सरफेस पर आ जाते हैं। जैसे तुम कहीं पार्टी में हो और वहां तुम्हारी पसंद का म्यूजिक बजने लगा, तो डांस करने का इमोशन सरफेस पर आ जाता है। किसी ने तुम्हें धक्का दिया तो उसके प्रति क्रोध का इमोशन जाग गया, उसके लिए गालियां निकल गई। फिर कहीं खड़े खड़े थक रहे थे तो किसी ने सीट दे दी, तो कृतज्ञता का भाव आ गया। फिर देखा पुलिस किसी बंदे को मारते हुए लेकर जा रही है, तो उस बंदे के प्रति दया का इमोशन जाग गया। फिर पता लगा कि यही बंदा किसी स्कूल में घुसकर बच्चों को मारने का इरादा रखता था, तो उसी बंदे के प्रति घृणा का इमोशन जाग गया। तो देखा आपने, इस तरह सारे के सारे इमोशंस हम सभी के अंदर मौजूद ही हैं। और इमोशनली लिटरेट होने का मतलब ही यही है कि अपने इमोशंस को समझना, स्वीकार करना और उन्हें एक्सप्रेस करना। इमोशनली हेल्दी होने का मतलब सिर्फ खुश होना या खुश दिखना नहीं है, बल्कि दुख, डर, गुस्सा, खुशी या उदासी, जैसा भी भाव हो, उस भाव को समझना और उसी भाव में जीना। मन जब अपने भावों की स्वीकृति के भाव में आ जाता है, तो मन शांत हो जाता है। अगर तुम हो तो उदास, पर कोशिश करके खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते रहते हो, तो मन उलझन में चला जाता है। इमोशनली लिटरेट होने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को पहचानें, यानी हम इस बात के प्रति अवेयर हूं कि मैं अब कैसा महसूस कर रहा हूं। क्या मैं दुखी हूं, उदास हूं, तनाव में हूं, नाराज हूं, अकेलापन महसूस कर रहा हूं या खुश हूं। सिर्फ नाम लें, कोई जजमेंट नहीं या समाधान की कोशिश नहीं। जैसा भी फील हो रहा है, हो लेने दे फील। इससे भी काफी हल्कापन महसूस होता है। तुम अपने इमोशंस को खुद से अलग देख पाते हो, उसमें फंसते नहीं। तुम्हें दिखेगा कि तुम अपने इमोशंस को समझते हो और उन्हें स्वीकार करते हो। और उम्मीद है कि आप सभी को ये मेरे इमोशनल लिटरेट होने का मतलब समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है मिस श्वेता से, जो सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस काउंसलर है। श्वेता जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। मैं श्वेता शर्मा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड स्कूल काउंसलर हूँ। तो मैं करीब 10 साल से इस एरिया में काम कर रही हूँ बच्चों के साथ में। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ मैम कि बच्चों को इमोशनल लिटरेसी स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस जरूर करना चाहिए। बट मैम, जैसे आपने एक शब्द अभी बोला था, इमोशनल इंडिपेंडेंसी, तो मैं चाहूंगी उस पर थोड़ा सा आप क्लियर करें कि इमोशनल इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब है। हाँ श्वेता जी, इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपने ही इमोशंस को रेगुलेट कर पाना। हमें अपने इन इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता, क्योंकि जो भी गुस्सा करता है या इरिटेट होता है या दुखी होकर उदास रहता है, उसके पास उसके रीजंस होते हैं और उनको जीवन में जीने का यही तरीका आता है। उनके पास और कोई तरीका है ही नहीं। असल में जैसे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे बोलने की ताकत आदि हमारे टूल्स हैं, वैसे ही हमारे इमोशंस भी हमारे टूल्स हैं। और अगर हम इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें, तो हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है, जैसे कि अगर हम किसी भी पेज को निकालना चाहें, हम कितनी भी हाथ से, उंगलियों से, नाखूनों से कोशिश करते रहें, पर हम उस पेज को नहीं निकाल पाते। और अगर हम पेचकस से उस पेज को निकालेंगे, तो वो आसानी से निकल आएगा, बशर्ते हमें पेचकस को सही जगह पर लगाकर सही तरीके से घुमाना आता हो। इसी तरह इमोशंस का सही इस्तेमाल हमारे जीवन के नए आयाम खोल देता है। और ये कोई ऐसे टूल्स नहीं है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सीखने हैं जो कि किसी जीवन में किसी इशू से गुजर रहे हैं। ये तो ऐसे बेसिक टूल्स हैं जो प्रत्येक इंसान की जरूरत है। इन्हीं टूल्स को यूज कर पाना ही इमोशनल इंडिपेंडेंस है। असल में हम भावनाओं के साथ जीते हैं। वी आर इमोशनल क्रीचर्स, जैसा सुमिता ने भी कहा। और ऐसे में अगर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो हमें ऐसे अपने चाहिए होते हैं जिन पर हम भावनात्मक रूप से निर्भर हो सकें। और ऐसे संबंध जिन पर हम इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी तो आनंद देते हैं, लेकिन अधिकतर वही संबंध अत्यंत दुखदाई भी हो जाते हैं। इसलिए इमोशनली इंडिपेंडेंट होना जरूरी हो जाता है। और अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमने भेजा है मिस सुशील ने, जो प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं सिंस लास्ट 30+ years। सुशील जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। Good evening, everyone. Myself, Sushil Kathuria. I'm teaching in DAV Public School, Janakpuri, since last 34 years.
मैम आई टोटली एग्री विद यू कि भी इमोशनल लिटरेसी बचपन से ही स्कूलों में करिकुलम में होनी चाहिए। बट क्लासरूम का इतना सिलेबस होता है, और मतलब लिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड सिलेबस होता है, तो क्या इस टीचर इस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकेगी? कैन यू प्लीज पुट लाइट ऑन इट कि हाउ टू ओवरकम इट एंड हाउ टू यूज इट? हाँ सुशील जी, तुम्हारे प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक कविता सुनाती हूँ जिसे लिखा है अनामिका जोशी ने। कविता यूं है कि ठहर जा ए बचपन तुझे सलीका सिखाऊं, तेरी बेपरवाह जमीन पर तमीज की चादर बिछाऊं, तेरे डगमगाते बेझिझक कदमों पर संकोच की सलाखें लगाऊं, तुझे भले ना हो कोई जल्दी पर तुझ पर बड़प्पन की का बोझ चढ़ाऊं, ठहर जाए बचपन तुझे सलीका सिखाऊं, तेरी कुलांचे खाती बेझिझक सोच पर जानकारियों की परतें सजाऊं, तू उड़ने को आतुर ख्यालों के आसमां में तुझे हकीकत के नाम पर नीचे बुलाऊं, तेरी निडर सी बेटोक सी बातों पर दुनिया क्या सोचेगी का डर बिठाऊं, ठहर जाए बचपन तुझे सलीका सिखाऊं। देखिए, ये जो सलीका हमें सिखाया गया और हमने भी अपने बच्चों को सिखाया, इसी में हम चूक गए। हमारे माता पिता से भूल हुई, फिर वही भूल हमसे भी हुई, और भूल चूक तो सुधारी जा सकती है। इस भूल के लिए हम कसूरवार नहीं है, क्योंकि हमारे माता पिता ने ये भूल की इसलिए हमने की। और और पीछे जाएं तो हमारे माता पिता ने भी ये भूल इसलिए की क्योंकि उनके माता पिता ने भी यही किया था। तो हम इस भूल के लिए कसूरवार ना भी हों, पर जिम्मेवार तो हम हैं ही। इसलिए इसे सुधारना भी हमारी ही जिम्मेवारी होगी। असल में बच्चे सिखाने से नहीं, देखने से सीखते हैं। अगर हमने उनको सिखाना है कि दूसरों की इज्जत करो या दूसरों से प्यार से ही बोलो, तो पहले हमें यही करना होगा। बहुत छोटे छोटे बच्चों को हम अगर बदतमीजी से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो क्या, तमीज नहीं है तुम्हें, तो वो बच्चा बदतमीजी ही सीखेगा, तमीज नहीं सीखेगा। तो पहले तो इमोशनल लिटरेसी हम पेरेंट्स और टीचर्स को समझनी होगी, फिर हमारे व्यवहार में आएगी वो, और उसी से बच्चे सीखेंगे, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं, देखकर सीखते हैं। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो सब बच्चों को सिखाना कोई अलग काम नहीं होगा। ये तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को देख देख कर ही सीख लेंगे। सुशील जी, उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अब शिखा मैम के पास एक फॉलोअप क्वेश्चन है, वो पूछना चाहेंगे। हाँ शिखा जी। शायद कोई नेटवर्क की गड़बड़ होगी या कोई। मेरे पास व्हाट्सएप पे है इनका क्वेश्चन, मैं देखती हूँ। या फिर म्यूट पे तो नहीं है, चेक करो। नहीं, आई थिंक उन वो चलिए, मेरे नहीं पास है, तो हाँ, व्हाट्सएप पे है। मैं पढ़ देती हूँ क्वेश्चन। ठीक है। शिखा लिखती है, हम लोग तो अभी अपनी नौकरी या ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने और लाइफ को डे टू डे लाइफ की समस्याओं में फंसे हुए हैं, तो हम लोग इन सब के बारे में सोच ही नहीं पाते। मुझे लगता है कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, थेरेपी, ये सब बातें जो हैं वो सेलिब्रिटीज या फिर हाई इनकम ग्रुप वालों के लिए ही हैं। मैं इससे रिलेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं डे टू डे लाइफ में ही प्रॉब्लम्स में फंसी रहती हूँ, और मुझे लगता है कि अभी मैं पहले पैसे कमा लूँ, हाई इनकम इनकम ग्रुप में आ जाऊं, तब मैं ये इसकी तरफ ध्यान दूंगी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी, वो पूछना चाह रही हैं। देखो, असल में जो शिखा जी कह रही है ना, वो एक बात तो है, एक पहलू तो वो है, पर ये कोई एब्सोल्यूट बात भी नहीं है। देखिए, हम अपना काम या जॉब करते हुए भी ये काम कर सकते हैं, और फिर जितना भी टाइम जिसके पास है उतना टाइम लगाकर भी ये काम किया जा सकता है। बात है हमारी इंटेंशन की। आज के वक्त में हमें अपने माइंडसेट के ग्रोथ के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो इंटेंशन और दूसरा इंटरनेट। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं वो थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आपको भी कोई रोक तो नहीं रहा। आप भी अपना जो काम करना है करके, उसके बाद जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, तो आप ये सब सोशल मीडिया पर फ्री में सुनना चाहो तो सुन ही सकते हो। जितना टाइम लगा सको उतना लगाकर भी आप समझ सकते हो। हम लोग फोन पर कुछ भी सुनते हैं, रील्स देखने में अपना समय बिता देते हैं, बजाय उसके ऐसा कंटेंट सुन सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ सीखा जा सके। तो बात है निर्णय लेने की।
अगर तुम्हारे हाथ में एक स्मार्टफोन है, जो कि आजकल करीब करीब सभी के पास है ही, तो तुम्हें जीवन दर्शन की बातों को एक्सेस करना आसान है। अब इन बातों के लिए तुम्हें कोई अलग से पैसा नहीं खर्चना पड़ता। पहले क्या होता था कि इन बातों के लिए पैसा चाहिए होता था, आपको कहीं दूर दराज आश्रमों में जाकर ये सब सीखना पड़ता था, या ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस करना पड़ता था जिनमें कॉस्ट भी लगती थी। पर आज के वक्त में आप सभी के पास इंटरनेट अवेलेबल है, और यूट्यूब पर कितना कुछ फ्री में पड़ा है, और यूट्यूब का एल्गोरिथम इसमें हमारी बहुत हेल्प करता है। हाँ तो सुरभि, आते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है डॉक्टर तन्वी से, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और वो हेल्प करती हैं विमेन को फिट रहने में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल एज वेल। डॉक्टर तन्वी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाय, थैंक यू सो मच सुरभि। मैं एक प्रीनेटल पोस्टनेटल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइजेस में गाइड करती हूँ ताकि उनकी विजाइनल डिलीवरी स्मूथली हो सके, और अगर किसी भी कारण से सी सेक हुआ है या होने वाला है तो आगे की कॉम्प्लिकेशंस के लिए उन्हें तैयार रखती हूँ। जब से मैं खुद माँ बनी हूँ तब से मैं समझ सकती हूँ एक इमोशनल टर्मोइल जो एक न्यू मॉम के लिए होता है फ्रॉम प्रेगनेंसी, वो कई गुना बढ़ जाता है अगर माँ इमोशनली वीक होती है तो। आपने कहा कि बच्चों को स्कूल में इमोशंस के साथ डील करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए, पर मुझे लगता है मदर बनने से पहले ही हर एक मदर को इमोशनल ट्रेनिंग देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ डॉक्टर तन्वी, आप सही कह रही हैं। असल में एवोल्यूशन के हिसाब से आज से लाखों साल पहले जो आज है वो सब तो था नहीं। ना तो पढ़ाई थी, ना कैरियर था, ना फेम था, ना ही यूट्यूब था। तो जीवन का मतलब ही यही था कि जिंदा रहो और अपने ही जैसे जीवों को बढ़ाओ, यानी टू सरवाइव एंड टू पास ऑन जीन्स। पहले अपने जीवन को लंबा जियो, और फिर जितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हो करो। हम भी तो वही हैं, हर जीव जंतु यही कर रहे थे। जीवन का मतलब ही यही था, तो हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट तो अभी भी है ही। जीवन का मतलब था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि अपने लिए मेट ढूंढो, यानी अपोजिट सेक्स का साथी ढूंढो, और फिर अपने ही जैसे जीवों को पैदा करो। ये सब अभी भी हम सबके अंदर है ही। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो चीजें बदल भी गई। अभी कुछ साल पहले तक प्रेगनेंसी भी हमारे हाथ में नहीं होती थी, लेकिन अब ये सब हमारे हाथ में है। तो नेचुरली लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी नए प्राणी को अच्छा जीवन दे नहीं सकते तो हमें उसे पैदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए डिंक का कॉन्सेप्ट भी आया है। डिंक यानी डबल इनकम, नो किड्स। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी आया, डिंक कोड, यानी डबल इनकम, नो किड्स, ओनली डॉग्स। खैर, आप बच्चे पैदा करें या ना करें, और करें तो कितने बच्चे पैदा करें, ये बिल्कुल ही अलग विषय है। यहां पर हम बात करना चाहते हैं कि अगर आपने बच्चा पैदा करने का डिसीजन ले ही लिया है, तो उसकी इमोशनल लिटरेसी की शुरुआत कब से हो? बच्चा पैदा होने के बाद हो, या प्रेगनेंसी में हो, या उससे भी पहले? देखिए, आज के वक्त में मदर्स प्रेगनेंसी में ही अपनी काफी केयर करती हैं। उसमें न्यूट्रिटिव खाने के अलावा फिजिकल एक्सरसाइज या योगा वगैरह भी सभी इंक्लूडेड होता है। और ऐसा करने के पीछे कारण होता है कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्मूथली निकल जाए, जैसा कि डॉक्टर तन्वी ने भी बताया। और तुम जानते ही हो कि प्रेगनेंसी में हर परिवार में वुड बी मदर का ख्याल रखा जाता है कि वो खुश रहे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। और बात केवल बच्चे के इमोशनल हेल्थ की नहीं है, बात उस वुड बी मदर के इमोशनल हेल्थ की भी है, क्योंकि वो खुद भी इमोशनली वीक होती है, तो टर्मोइल, हार्मोनल चेंजेस की वजह से इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही होती है। तो ये जरूरी है कि प्रत्येक महिला प्रेग्नेंट होने से पहले ही इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। और ऐसा भी सुनने में आता है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसे वीरता की कहानियां सुनाई जाती थी, और अभिमन्यु का चक्रव्यूह को भेद पाना माँ के पेट में ही सीखने की बात आती है। देखिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कितना सच है, लेकिन एक बात का अनुभव तो मुझे भी है कि बच्चा बहुत छोटे होते से इमोशंस को समझने लग जाता है। बहुत छोटे बच्चे को समझ आता है कि कोई उसे डांट रहा है या प्यार से बात कर रहा है। रोना और डरना तो बच्चे को पहले दिन से आता है, और प्यार करना, गुस्सा करना भी बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। यानी बच्चे इमोशंस को बहुत जल्दी समझने लगते हैं। इसलिए मदर्स अगर पहले से इमोशनली लिटरेट होंगी, तभी ये सब बच्चे को भी पास हो पाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बच्चे सिखाने से नहीं, देख कर सीखते हैं। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं तो उसके लिए भौतिक सुविधाएं दे देना काफी नहीं होगा।
आपको अपने बच्चे को क्वालिटी लाइफ भी देना जरूरी है, और उसके लिए पहले पेरेंट्स को इमोशनली इंडिपेंडेंट होने की जरूरत है। तभी वो अपने बच्चे को भी इमोशनली इंडिपेंडेंट बना पाएंगे। इसलिए तो हम ये प्रोग्राम स्कूली बच्चों के लिए कर रहे हैं, वही तो कल के पेरेंट्स बनने वाले हैं। असल में हमारे मन का आराम केवल सुख सुविधाओं के मिलने से नहीं है। हमारे मन का आराम ये सीखने और समझने में है कि कैसे हम पूर्ण विकसित हों और पूर्ण आनंदित हो सकें, ताकि हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकें और हम अपना ही बेस्ट वर्जन बन पाएं। और इसके लिए जरूरी है कि हम सभी इमोशनली इंडिपेंडेंट हों ही। ओवर टू सुरभि। एक हमको अभी क्वेश्चन आया है कि योगिता जी से कि ओवर इमोशनल होना क्या है, इज इट गुड और बैड? हाँ जी, देखिए, ओवर इमोशनल को ऐसे एग्जैक्टली तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। देखिए, जैसे आप ब्लड प्रेशर कह देते हैं कि ज्यादा है। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? कोई कहता है 90/130, तो क्या 89 या 131 ये नॉर्मल नहीं है? या 129 पे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए? तो बहुत सारी बातें और भी देखनी पड़ती हैं। 1 मिनट में ऐसे एकदम से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और भी कंडीशंस होती हैं, और भी चीजें होती हैं। तो हम अ, बता सकते हैं कि एक्चुअली ओवर इमोशनल तो कुछ होता भी नहीं है। इमोशंस हम सबके पास हैं, और उनको यूज करना हमें सीखना होता है। ऑलराइट, एक हमें अनोनिमसली क्वेश्चन आया है। उन्होंने पूछा है, हाउ कैन वी रेगुलेट आवर इमोशंस स्पेशली व्हेन यू आर ओवर सेंसिटिव एंड ओवर इमोशनल? ये सिमिलर ही हाँ, है। हाँ, वो कह देते हैं हम ओवर सेंसिटिव, यूज करते हैं हम ये लैंग्वेज। और ये ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ब्लैक एंड व्हाइट की तरह हम बता पाए ओवर क्या होता है और अंडर क्या होता है और एग्जैक्टली क्या होता है। ये सब सीखना पड़ता है। और ये रेगुलेट करना, जैसे आपने पूछा ना कि कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये एक दिन में सुमिता जी ने भी बताया कि ओवरनाइट तो बताया नहीं जा सकता। अब जैसे आप कहीं इंजीनियरिंग करने जाते हैं, ओरिएंटेशन होता है, आपको इंजीनियरिंग के बारे में बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है। पर इंजीनियरिंग तो करवाने के लिए एक दिन नहीं चाहिए, एक दिन में नहीं करवाते वो। उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो आप कर पाते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे यहाँ से ही सीखें, कहीं से भी सीखें, कहीं से भी समझें। यूट्यूब पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। और इंटरनेट पे बहुत कुछ है इसके बारे में, कोई भी आपको सिखा सकता है ये। तो बस बात यह है कि सीखना जरूरी है। आई वुड लाइक टू ऐड, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, मतलब कोई भी हाँ, प्रोफेशनल सिखा सकता है हाँ, आपको। प्रोफेशनल ही सिखा सकते हैं। हाँ जी। और हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं गुस्से को, एंगर को, या हर जो इमोशन है ना, हमें लगता है कि अगर हमें लगता है कि हम ओवर इमोशनल हैं, या हमें गुस्सा ज्यादा आता है, या हमें चिंता ज्यादा होती है, या ओवर थिंकिंग है, कुछ भी ओवर अगर हमें दिखता है ना, तो उसका नाप तो कोई भी नहीं होता। कि कैसे नापोगे कि क्या ओवर है और क्या नहीं है? तो समझना ये पड़ेगा कि कितना सही है, कितना गलत है, कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसको पूरा, इसके सारे पहलू समझने होंगे, देखने होंगे। तभी जब क्लैरिटी होगी इस बारे में, तभी आप कोई प्रश्न ये जो है फिर मिट सकता है। अगर किसी और को भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। कोई भी सजेशन, फीडबैक। मैंने श्रीतारा का नंबर भी चैट में पेस्ट कर दिया है, अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है यहाँ पे, बताना है कि जैसे कि हाँ। हमने कहा कि बच्चे सिखाने से नहीं, वो देखकर सीखते हैं। तो ये मतलब घर में भी, स्कूल में भी, मैंने 33 ईयर जॉब की है। कि सेम घर में भी क्या होता है कि तुम जो लैंग्वेज बोलते हो ना, तो बच्चे लैंग्वेज भी वही सीखते हैं। बिल्कुल वही बोलेंगे। जैसे एक मजाक की बात है, जैसे हमें मेरे फादर इन लॉ शायद हर बात में बहुत बोलते थे, कमाल है, कमाल है। तो जब मेरी बेटी ने सीखना शुरू किया, बोलना सीखना शुरू किया, तो सबसे पहला वर्ड ही उसने यही बोला। तब हमें रियलाइज हुआ कि वो ज्यादा बोलते हैं। तो बच्चे बिल्कुल जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही सीखना शुरू करते हैं, और बड़े होने तक वही सीखते रहते हैं। ये क्वेश्चन और आया है सुरभि। हाँ, सुरभि हाँ पढ़ो वो जी। क्वेश्चन, मैंने भी हाँ, देखा एक उसको। क्वेश्चन जो आया है, हाउ डू वी डील विद फीलिंग्स और ट्रॉमास वी फेस्ड इन आवर पास्ट सो दैट
won't affect our present? हाँ, ऐसा ये प्रश्न बहुत आते हैं कि पास्ट में ना किसी का चाइल्डहुड खराब था, किसी के साथ कुछ हो गया। देखिए, वापस जाके पास्ट में तो उसको ठीक किया नहीं जा सकता, पर अगर आप नोटिस करें ना, अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होता है तो वो पास्ट वाली बातें याद नहीं आती। पर अगर आप प्रेजेंट में भी किसी बात से परेशान होते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं आप पास्ट में भी। खैर, फिर भी चाहे आप परेशान ना भी हो तो भी पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी आपको परेशान करता है, विचार परेशान करता है, उसकी बात करनी पड़ेगी, उसको खुल के पूछना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे डॉक्टर के पास जाके कि मैं तो अनहेल्दी हूं, मुझे हेल्दी कर दो। ठीक है, आपको बात करनी होगी। कई लोग कहते हैं कि बात करने से उल्टा हम दुख में चले जाते हैं। नहीं, दुख तो तुम्हारे अंदर वैसे ही है। अगर बात नहीं करोगे तो ऐसा है जैसे तुमने कहीं, तुम्हारी शरीर में जख्म है और तुमने उसको ढक रखा है और अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और कहते हो मैं ठीक हूं, तो वो ठीक तो नहीं है, वो कभी भी ठीक नहीं होगा ढकने से। उसका इलाज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप ठीक होना चाहते हो तो उसको उघाड़ना पड़ेगा, उसको आपको नेकेड रखना पड़ेगा ताकि वो ड्राई हो सके। उसकी बात करनी पड़ेगी, भले ही बात करते हुए रोना आए, सोचते हुए भी रोना आए, पर वो आखिरी रोने होंगे। राइट। ये एक्चुअली साइकोलॉजी में भी काफी पढ़ाया जाता है कि बचपन के में जो हुआ है उससे हम अभी भी इफेक्ट हो रहे हैं, बट उसका अब कुछ किया नहीं जा सकता। वो जाना जा सकता है कि क्या हुआ है, बट एक्शन तो प्रेजेंट में ही लेना पड़ेगा। और लिया जा सकता है, प्रेजेंट में एक्शन लेके ठीक होते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होते वो, बस वो उल्टा इस गलतफहमी में चले जाते थे अब हम तो ठीक नहीं हो सकते क्योंकि हमारा तो बचपन वापस आएगा नहीं। जो बचपन में हमारे साथ हो गया उसको तो अंडू किया नहीं जा सकता। उसको अंडू करने की कोई जरूरत नहीं होती है, समझने की जरूरत होती है। राइट। और एक बार जो घट जाता है हमारे साथ वो हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाता है। हम उसको भुला नहीं सकते, हम कोई दिमाग में खोपड़ी में हाथ डाल के उसको निकाल नहीं सकते। उस विचार को निकालने के लिए कोई नया विचार जो यूजफुल हो वो खड़ा करना पड़ेगा उसके सामने। हाँ जी। एक और हमारे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट्स द बिगेस्ट बैरियर स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम बिकमिंग इमोशनली लिटरेट एंड हाउ डू वी ओवरकम इट? एक बार फिर पढ़ना, मैंने सुना नहीं। व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर stopping people from becoming emotionally literate and how do we overcome it? कौन सा सबसे बड़ी अड़चन है जो आ रही है इमोशनली लिटरेट बनने में लोगों को? अपने लिए पूछ रहे हैं या लोगों को बनने में पूछ रहे हैं? वो अपने लिए पूछ रहे हैं, लिटरेट होना चाहती है ना, तो वो उसके लिए एक्चुअली वो, बैरियर क्या हाँ, है? हाँ, बैरियर तो कुछ भी नहीं है। आपकी इंटेंशन ही तो चाहिए, इंटरनेट और इंटेंशन चाहिए। आप सीखना चाहो तो सब कुछ सीख सकते हो। सीखने की इंटेंशन चाहिए, क्या बैरियर है? कुछ नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक फिर भी कह सकते हो बैरियर है, पर जैसे दीपिका पादुकोण वगैरह आगे आई, सामने आई, तो अब मेंटल हेल्थ की बात होने लगी। अब लोग बात करते हैं, बात करते हैं अभी भी, और पर काम नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। और इस काम करने को भी, हाँ, इस काम करने को भी ऐसे क्लियर किया जा सकता है कि अभी अभी जैसे मैम ने कहा ना कि तुम्हें खुल के बताना होगा कि क्या बैरियर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा जहां भी पूछेंगे। फिर आप काम का मतलब उसको बार बार आप सुनेंगे, समझेंगे, आपकी समझ बनेगी ये। तो उसके बाद ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। काम करने का मतलब ये है कि ढूंढो, खोजो, सर्च करो, फिर बात करो किसी से या कुछ भी करो जो भी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि टैक्स पे करना होता है, सबको करना होता है। और अगर इमोशनली लिटरेट होना है तो सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करने होंगे। ऑल्सो कुछ साल पहले तक इतने मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं थे इंडिया में। अब बढ़ते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जा रही हैं और अफोर्डेबल भी होती जा रही है ये फील्ड। अब तो फ्री में अफोर्डेबल क्या, अब यूट्यूब हाँ। पे इतने पॉडकास्ट हैं जो साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, अभी मैंने कल ही कोई देखा उसमें चारों एक साथ बैठे थे और 2 घंटे 2.5 घंटे का वो पॉडकास्ट है। और एक एक बात को इतनी क्लैरिटी से, तसल्ली से बताया गया है कि सुनेंगे तो उससे हमारी समझ डेवलप होगी। तो वही है लिटरेसी कि तुम लिटरेट होते ही चले जाओगे, रिलेट करोगे उनकी बातों से, नहीं करोगे क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो ऐसे ही होंगे इमोशनली लिटरेट। हाँ चलो, जी। पर फिर भी कंफ्यूजन होता है कि किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं। उसका एक ही तरीका है, ढूंढो, जाके देखो। अच्छा लगेगा उसके साथ कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। आप कोई कुर्सी भी खरीदने जाते हो तो पहली दुकान से कुर्सी नहीं खरीद लेते,
उसको छोड़ देते हो अगर अच्छी नहीं लगती, या अच्छी लगती है तो भी सोचते हो कि एक और दुकान पे देख लें, कोई बात नहीं दूसरे डॉक्टर से मिलो। ये आपकी लाइफ की बात है, आपकी जीवन की बात है। तो आप एक से मिलके आपको अच्छा नहीं लगा तो दूसरे के पास चले जाओ, तीसरे के पास चले जाओ, तो आपको मिलेगा। अगर आप एफर्ट्स करोगे ना तो ये नहीं हो सकता कि आप को कोई ना मिले, बहुत है अब। Right. वही बात हो रही है इमोशनल लिटरेट होने की। तो ये जो हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल के पास जाने की बात कर रहे हैं, तो ये जो सबसे पहले क्वेश्चन आया कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें। रेगुलेट मतलब नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है करने में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को लेके आपको जो रिलेटेड डॉक्टर होगा, जो प्रोफेशनल होगा, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट जो भी होगा, उसके पास जाएंगे, या जो भी आपको अपने से आगे लगता है। और ये भी है कि प्रोफेशनल्स के पास क्या, पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज होती थी तो एक दूसरे की प्रॉब्लम बड़े लोग इस छोटों की सॉल्व कर देते थे, वो बैठते थे, वो पूछते थे। तो अब ये है कि अब प्रोफेशनलिज्म का जमाना है, तो आप प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं कि जो भी दिक्कत आ रही है आपको, आप पूछ सकते हैं। ऑल्सो कई बार रिलेशनशिप में उतना ओपन अप नहीं हो जाते और वो बैकफायर भी कर हाँ जाता है, क्योंकि उनकी लिमिटेड नॉलेज होती है, वो उतना ही पास ऑन कर पाते हैं। हाँ। ठीक है, आई थिंक इतने ही थे। तो थैंक यू ऑल फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड अटेंशन टुडे। वी ट्रूली होप यू फाउंड दिस सेशन मीनिंगफुल एंड वर्थवाइल। अगर अभी भी कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, सेशन के बाद भी आपके दिमाग में आते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। We will try our best to address them in our next Q&A session. Shri Tara School of Wellbeing holds free Zoom Q&A webinars on Thursday at 4 p.m. Indian Standard Time. So in case any of you are interested to attend those, just WhatsApp Thursday on our helpline number and we will add you to the relevant WhatsApp group. श्री तारा का हेल्पलाइन नंबर, एज आई सेड बिफोर, मैंने चैट में पेस्ट कर दिया है। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सारे ही लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम हैं। Thank you once again for being with us. We look forward to seeing you in our next webinar. Bye bye. थैंक यू। थैंक यू।